डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंशन पूरा कर लिया है। आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आप अपना पेन और नोटबुक्स निकाल लें और मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बोलता हूँ, आपने नोट करते चले जाएं, अपनी नोटबुक्स में लिख लें और याद कर लें। ठीक है, आप अपने अपने कॉपी पेन ले लें। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज यक्ष? Why did Yam take in the form of Yaksha? What questions did he ask Yudhishthir? इसका आंसर है यक्ष was Yama, the lord of death. He had taken the form of Yaksha to see and test Yudhishthir. इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन जोड़े गए। इसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट था हु वाज यक्षा, जो हम आंसर दे चुके हैं, यक्षा वाज यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। इसका दूसरा पार्ट है व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप क्यों लिया। इसका उत्तर है जो हम आपको लिखवा चुके, ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, कि वो युधिष्ठिर को देखना चाहता था और उनकी परीक्षा भी लेना चाहता था। और इसका तीसरा पार्ट है What questions did he ask युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे। जो प्रश्न पूछे उन्हें अब हम नीचे बोलते हैं। Some of them, as he asked युधिष्ठिर many questions, some of them are as following. Number A, what rescues man in danger? B, by the study of which science does man become wise? C, what is swifter than the wind? D, what is more faded than a dried straw? E, what befriends a traveler? F, who is the friend of one who stays at home? G, who accompanies a man in death? H, which is the biggest vessel? I, what is happiness? J, what makes a real Brahman? And many more other questions यक्ष asked युधिष्ठिर। ये आपके पहले सवाल का उत्तर था। आशा है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। इसका आंसर है युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स वर लिविंग इन एक्साइल. One day they felt overpowering thirst. Therefore they started in search of water and ultimately they found a pool of clean water. They tried to drink the water. At once a bodiless voice warned them to answer his questions, but they did not pay heed to his words and tried to drink water. So Yaksh killed them all and they were lying dead near the pool. ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर था। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर एंड वाई। यक्ष ने युधिष्ठिर को पुरस्कृत क्यों किया और किस तरह किया। इसका आंसर यक्ष वाज प्लीज्ड बाय युधिष्ठिर's आंसर्स, सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर ऑफ हिज चॉइस. Yudhishthira chose Nakul, the son of Madri, because he, the son of Kunti, was alive. So Kunti was not completely bereaved. In order to keep the scales of justice even, he wanted to revive Madri's son Nakula. Thus, Yudhishthira's impartiality pleased the Yaksh most, and therefore यक्ष रिवार्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स. ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का उत्तर था. क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर. इसमें युधिष्ठिर की चरित्र की विशेषताएं पूछी गई है, आप नोट कर लें. द कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर इज गिवन बिलो. नंबर 1, eldest brother. Yudhishthira
was the eldest of all Pandavas. They were 5 in all. They had been living in exile. The second, a loving brother. Yudhishthira loved his brothers most. When he saw them lying dead, he could not restrain the separation. He cried loudly and mourned. Number 3, brave and intelligent. Yudhishthira was brave to face any situation. He was very intelligent also. He answered all questions asked by Yaksha patiently and satisfactorily. Number 4, lover of justice. Yudhishthira loved justice very much. He, Kunti's son, was alive, but Madri's both sons were dead. So he chose Nakula to be revived, so that the scale of justice should be even. These are the main features of his character. अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेंगे. आप लिखें. क्वेश्चन नंबर 1, what doubts came in the mind of Yudhishthira when his brothers did not return? जब उसके भाई वापस नहीं आते तो उसके मन में क्या क्या परेशानियां उठती हैं, क्या क्या शक पैदा होते हैं. आंसर लिखें. When his brothers did not return, he doubted, inverted comma start. Can they have been subjected to a curse? Or are they still wandering in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Question mark and inverted comma closed. Question number 2. Where did Yudhishthira go and why? Answer. Yudhishthira went to the forest in the direction of his brothers had gone because he wanted to find them. युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में उधर ही गए थे जिधर उनके भाई पानी की तलाश में गए थे. क्वेश्चन नंबर 3. Describe the way on which Yudhishthira proceeded. युधिष्ठिर किस रास्ते से गए थे उसे आप वर्णन करें. The way on which Yudhishthira went was through the forest full of white bears, spotted deer, and big forest birds. Question number 4. What did Yudhishthira think about his brothers and what did he wonder? युधिष्ठिर अपने भाइयों के बारे में क्या सोच रहे थे और उन्हें देखने के बाद उन्हें आश्चर्य क्या हुआ जब उन्होंने अपने भाइयों को उस अवस्था में देखा. Yudhishthira thought about his brothers that they had been taken away just when their exile was to end. युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे भाई मुझे जब ही छोड़ के चले गए जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है. He wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्होंने ये भी आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को मारने का शक्ति किसमें है. This was your question number 4. Now question number 5. What did he descend into the pool? Why did he descend into the pool? What happened then? युधिष्ठिर तालाब में क्यों उतरे और जब वो तालाब में उतरे तो क्या हुआ. He descended into the pool to quench his overpowering thirst. He also heard the same warning of answering the question first. जब वो उस तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तो उनके साथ भी वही हुआ. उन्होंने वो आवाज सुनी और उस आवाज ने उनसे कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पीना. क्वेश्चन नंबर 6. Whom did the pool belong to? What did he tell Yudhishthira about the death of his brothers? तालाब किसका था और उसने युधिष्ठिर को उनके भाइयों के मृत्यु के विषय में क्या बताया. The pool belonged to Yaksha. He told Yudhishthira that his brothers died because they did not heed his words and tried to drink water before answering the questions. Question number 7. How can learning be a friend to a traveler?
ज्ञान किसी यात्री का साथी कैसे हो सकता है? आंसर, लर्निंग बिकम्स ए फ्रेंड टू ए ट्रेवलर बिकॉज इट अलोन गाइड्स ए ट्रेवलर अबाउट राइट एंड रॉन्ग and it is only thing that accompanies him. Question number 8. How according to Yudhishthir can a man become happy and rich? युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति कैसे धनी हो सकता है और प्रसन्न हो सकता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर a man can become happy by his good conduct and become rich if he gives up being greedy. Question number 9. What is the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Everyday men see creature depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This is truly the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिर. Question number 10. Whose sons were Nakul and Sahadev? Answer, Nakula and Sahadev were the sons of Madri. अब हमारी वोकैबुलरी शुरू होती है. इसमें आपको एक शब्दों की लिस्ट, वर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी. दूसरी तरफ आपको दूसरे शब्दों की लिस्ट दी जाएगी जिनमें एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, वो आपको एक दूसरे के सामने लिखने होते हैं. दूसरी लिस्ट में जो शब्द लिखे होंगे वो ऊपर नीचे अलग बिगड़े हुए क्रम में लिखे होंगे. आपको एक शब्द के सामने सही क्रम में उन शब्दों को लिखना होता है. ये मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लें. लिस्ट नंबर 1, ए, जहां हमारे क्वेश्चन वर्ड है बियर, उसके सामने आंसर में आएगा पुट अप विद. दूसरा, वेदास, आंसर में आएगा होली बुक्स ऑफ हिंदूज. सेक्रेड, आंसर होली. वोव, इट मीन्स प्रोमाइस. नंबर 2 लिस्ट, हैपेंड, इट मीन्स अकर्ड. मिसफॉर्चून, इट्स आंसर सोरो. सॉलिटरी, इट मीन्स लॉनली. और यील्ड, इट मीन्स गिव्स. और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो लिस्ट आपके पास हम पहली वीडियो में दे चुके हैं, आप उसमें टैली कर सकते हैं. हमने केवल आपको आंसर दे दिए, आप इन्हें याद कर लेंगे. अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होता है. वोकैबुलरी का बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन बिलो. वर्ड्स दिए हुए हैं गेस्ड, प्राउड, स्विफ्टर देन, प्रेफर्ड एंड कंटेंट. इसका हमने आंसर दिया है सीधा, द पूल कंटेंट क्लीन वाटर. दूसरे में युधिष्ठिर रिफर्ड नकुल टू हिज ब्रदर्स अदर ब्रदर्स, अर्थात युधिष्ठिर ने अपने अन्य भाइयों के मुकाबले नकुल को ज्यादा वरीयता दी थी. नंबर 3, व्हेन द यक्ष वार्ड युधिष्ठिर द लेटर गेस्ट व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स. नंबर 4, ए मैन हु इज प्राउड of himself, of his position and wealth is not loved by anybody. इसमें इसका आंसर है प्राउड यूज करना है इसमें. और सबसे लास्ट में आपको यूज करना है मैन माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड. अब हमारा सी पार्ट वोकैबुलरी का स्टार्ट होता है. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज विद ए सुटेबल फ्रेज. जो हमें नीचे फ्रेज दी गई है उनमें से आपको सुटेबल ढूंढनी है और उन्हें आपको सेंटेंसेस में जो दिए गए उन्हें यूज करना है. ये आपके पास है उसमें वीडियो में पिछली में. आंसर में बोलता हूं. पहला क्वेश्चन एंड आंसर है व्हेन युधिष्ठिर ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न ही वाज फिल्ड विद ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर. ये शब्द आपका आंसर है, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर. पहले सेंटेंस में भरा जाएगा. दूसरे में आप भरेंगे हिज ब्रदर्स हैड बिकम ए विक्टिम टू द यक्षाज वर्ड्स कॉलिंग फॉर पनिशमेंट. दिस इज द आंसर, कॉलिंग फॉर पनिशमेंट. तीसरा, द पूल वॉज सराउंडेड बाई ए पीस ऑफ ग्रासलैंड. इट्स आंसर इज ए पीस ऑफ
grassland. हमारा चौथा क्वेश्चन है he saw his brothers lying without movement and sound. इसका आंसर है without movement and sound, बिना हिले डुले, बिना किसी आवाज के. His brothers had been made aware of the danger. इसका आंसर made aware of the danger. ये फ्रेज हमने इस सेंटेंस में पांचवें में यूज की है. अब इसका डी पार्ट शुरू होता है. यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन योर ऑन सेंटेंसेज. जो दी गई फ्रेजेज हैं वो हमें अपने सेंटेंसेज में, अपने प्रयोग शब्दों, अपने उसमें वाक्यों में प्रयोग करनी है. पहली कीप ऑन, दूसरी वेंडर अबाउट, तीसरी लुक फॉर, चौथी जस्ट व्हेन एंड द अदर इज नन अदर देन. इन्हें हम यूज करते चलते हैं. पहली कीप ऑन, इसे हम यूज करेंगे द पेशेंट केप्ट ऑन क्राइंग ऑफ पेन होल द नाइट. अगला वेंडर अबाउट को यूज करेंगे व्हाई आर यू वेंडरिंग अबाउट इन दिस लोकेलिटी. तीसरी लुक फॉर आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक. चौथा जस्ट व्हेन आई रीच्ड होम जस्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. अगला नन अदर देन, इसे हम यूज करेंगे द पर्सन हु टॉक्ड ऑन फोन लास्ट नाइट कैन बी नन अदर देन योर फ्रेंड. दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन चैप्टर नंबर 1 एंड थैंक्स. हमने पिछली वीडियो में, अगर इन क्वेश्चंस की हिंदी में किसी की समझ में नहीं आई है तो हमने पिछली वीडियो में वो सारा एक्सप्लेन किया है. सबसे पहली वीडियो में उसे आप दोबारा देख सकते हैं, वो सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.